अनुकृति, you're an RJ. हाँ कह सकते हाँ, हैं कह सकते हैं क्या? मतलब मैं करती हूँ वीकेंड हाँ। शो करती हूँ But what is an RJ? RJ क्या करता है वैसे? आरजे रेडियो पर इंटरैक्ट करता है हाँ। बेसिकली सारे लिसनर्स से हाँ बीच बीच में आकर के थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हाँ. देता So है आपको, how would you content देता है. describe your role? Like, So basically, I'm a producer. okay. So when I came into radio, I was hired as a producer. So a producer is not like जो पैसे डाल रहा है उसमें. It's like producing content. Like whatever goes on the radio, Okay. you are ideating stuff for it. हाँ. So जैसे okay. I was a station producer plus a music manager plus a radio jockey. So हाँ ऐसे Were you an बहुत बार intern होता there? है. I was an intern, but then they hired me as a producer. Okay. Okay. So होता है कभी कभी रेडियो में that one person is like Yeah. doing a lot of things Okay. at the same time. Okay. So I was a producer, I was a music manager, and then I got a show which was a mid-morning show sort of a thing. Mid-evening you can call it because it was Okay. like a 1 hour show. हाँ. So it was called Pune Cafe. हाँ. So वो शो मैंने कुछ 1-1.5 साल किया और फिर मुझे ऐसा लगा कि यार मैं हमेशा खुश नहीं रह सकती रेडियो पे मैं हमेशा माइक को देख कर भी खुश नहीं रह सकती. So then I decided maybe I'm better off, you know, behind the mic and like हाँ. creating ideas and stuff. Okay. So Okay. then I decided कि मेरे को producer ही रहना है. I don't want to do a show. Like there used to be times when I'm really depressed, yeah. And then you have to sound like, Yay! "Hi, मेरा नाम है अनुकृति और मैं आ चुकी हूँ आपको आज entertainment दिला." माँ की It used आग. to be हाँ तो वो थोड़ा सा मुझे realize हुआ बाद में कि यार नहीं हो रहा है. हाँ. So then I decided that I'll stay a producer. And मीडिया में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं of तो उनको एक्सप्लोर करूँगी and then But ये जो transition है, you said you started off as a producer and then found yourself behind the mic. This is not a normal career trajectory, right? right yeah. So was your like, did your seniors think that नहीं यार इसका personality ऐसा है कि probably हाँ मे बी इसको कैमरा के आगे रखा जाए, ऐसा हुआ था मेरे साथ कि यू नो पहले तो मुझे प्रोड्यूसर के जैसे हायर किया, देन म्यूजिक मैनेजर एंड एवरीथिंग, एंड देन लेटर ऑन यार ये मतलब कर लेगी तो कर तो लिया मैंने, बट स्टिल वो पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिला मुझे. सो देन आई थॉट कि यू नो मे बी आई एम बेटर ऑफ आइडिएटिंग थिंग्स और प्रोड्यूस करने में ही बेटर है. Okay. But you said you were a mid-evening host. Host Correct, or correct. RJ? Host, Sorry, host. yeah. हाँ होस्ट तो एक दिन में कितने ऐसे slots होते हैं? काफ़ी सारे होते हैं. सो there's drive time shows, so there's morning show, there's evening show, then there is mid morning show which is basically 11 से लेकर के 1 तक जो होता है, then there's an afternoon show, Okay. and then there's a mid evening show, and then the evening show, and then the night show as well. So So ये 3-4 घंटे के हिसाब से. so one session जैसे your mid-evening show used to last for 3 hours. No, 1 hour. 1 hour. That was a 1 hour. But 3 घंटे Yes. तक चलता है. Generally. अलग-अलग slots. हाँ अलग अलग. So जैसे morning show starts at around 7 o'clock in the morning. That's the first show of the Yeah, day? that's the first show of the day. हाँ. It starts at around 7 o'clock in the morning and Okay. then lasts till 11 o'clock in the morning. So at that time पूरे समय the RJ is in the studio giving you live updates, क्या चल रहा है शहर में आजकल, क्या नया है whatever. So like I'm assuming that you get some kind of a brief before the show. Yeah, so जैसे, that brief I create. You create that. Is that more also in the writing bit? That is also like or curating news. Yeah, so you are curating news. At the same time, there are different kinds of segments in a show. So like for example, in the first link, it starts off with a positivity link. Like if I'm talking about the morning show, कि थोड़ा सा light रखेंगे माहौल, तुरंत ऐसे ये नहीं कि हाँ सैफ अली खान पर अटैक हुआ तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, सुविचार हम कहते हैं उसको. सो जैसे गुड मॉर्निंग कोट्स आते हैं ना व्हाट्सएप पर, वैसे टाइप्स. So you're in a way you're like that auntie जो सुबह उठ के सबको गुड मॉर्निंग. यार पूछो मत, ये सब का मैं कर चुकी हूँ एक्चुअली. हाँ तो हाँ मैं भी कभी कभी अगर फैमिली ग्रुप पर कोई अच्छा गुड मॉर्निंग थॉट आया होगा तो चिप उठा के चेप दो उधर. सो ये चीज मैंने की हुई है. Okay. So then there are different kinds of segments, like I said.
कि इस पर्टिकुलर आवर में द इंटरेक्शंस विल हैपन, लाइक यू नो कॉन्टेस्ट्स वगैरह जो भी होते हैं कॉलर्स के साथ, क्योंकि दैट इज द टाइम. जैसे 7 बजे कोई रेडियो इतना ज्यादा नहीं सुन रहा, राइट. तो आप घर से निकलते ही हो 9 बजे के आसपास, 9, 9:30, 10. सो दैट इज द टाइम जहाँ पर ज्यादा लोग, द लिसनरशिप इज मोर. Okay. So that's why we try and keep that particular hour more interactive. Okay. So like there's vox pop, there's caller interactions, contests वगैरह जो भी होते हैं वो बाद में होते हैं. अच्छा, तो सबसे ठंडा स्लॉट कौन सा होता है दिन का? 7 से 8. शाम को कोई नहीं रहता मतलब? नहीं ठंडा स्लॉट मतलब like no interaction or the easiest I would say like easiest after 11 PM, क्योंकि उस समय कोई आरजे नहीं होता आई थिंक. मिडनाइट शोज नहीं होते क्या, ऐसे 2 AM शोज ऐसे? तो नहीं, अब नहीं होते. पहले होता था? पहले होते थे, बिकॉज आई रिमेम्बर अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव वर्कड इन दिस इंडस्ट्री फॉर अबाउट 20 years, दे यूज्ड टू टेल मी कि हर 1 घंटे का एक पर्टिकुलर आरजे होता था पहले. बट नाउ इट्स लाइक मतलब एक मॉर्निंग शो का एक आरजे होता है, एक इवनिंग शो का आरजे होता है. सो या पहले लोग भी ज्यादा थे ना रेडियो सुनने वाले. हाँ, I was coming to that कि how relevant is radio today? See, रेडियो सुनने वाला कौन है? How, what do you think? चलो, I will tell you मैंने किसको रेडियो सुनते हुए देखा है. I don't have a hypothesis कि कौन generally. I have only seen my elders, like when I say my grandparents. Right. वो भी एक रेडियो FM नहीं सुनते वो. They have a very एक रीजन स्पेसिफिक ओल्ड गाने वाला रेडियो. हाँ, वो है. करेक्ट. रेडियो कभी कभी मैं गलती से सुन लेता हूँ, जब कार स्टार्ट होता है तो रेडियो ऑन हो जाता है, बट मैं इमीडिएटली फिर ब्लूटूथ पे लगा देता हूँ. एग्जैक्टली. तो अपार्ट फ्रॉम दैट, सॉरी यार, मतलब आई एम नॉट द रेडियो ऑडियंस. नो, व्हिच इज राइट. आई पर्सनली फील दैट रेडियो इज जस्ट अ मीडियम टू यू नो प्रोवाइड कंटेंट to whoever is listening. Like it's just a way, it's just a medium. Content रेडियो पर्सन भी दे रहा है, एक आरजे भी दे रहा है, और इंस्टाग्राम पे कोई जो रील स्क्रॉल करते हैं आप जिसके ऊपर, वो कंटेंट क्रिएटर भी दे रहा है, बट मीडियम अलग है. हाँ, हालांकि आई ट्रूली फील दैट रेडियो इज मीडियम and it is approximately a decade back. Yes, it is dead. It will be dead, I feel, in coming मतलब after a few years. But at the same time, radio companies are trying to be more digital now. Like you have seen so many, I'm sure you must have seen their reels and stuff. So we are trying to make, we are trying to hire also people जो जिन्हें digital भी पता है. Like Instagram पे reel कैसे बनाना है और radio पर रहना है, दोनों चीजें पता है. Okay. So yeah, simultaneously, a lot of radio stations are now trying to be an event company. So that can be, so like there are a lot of radio stations who are organizing events. Like we of course have better relations with the celebrities. तो वो सब एक चीजें मतलब we are trying to, you know, radio is a dying medium for sure, but हाँ कोशिश जारी है कि एक डिजिटल के थ्रू हम लोगों तक पहुंचे. नहीं, but when you say digital, मतलब this is what my understanding is. You're saying that जो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम हो गया या लिंक्डइन भी हो गया फॉर दैट मैटर, यू जस्ट ट्राइंग टू पुट इन मोर रेलेवेंट कंटेंट ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स ताकि दिस क्राउड रीडायरेक्ट्स टू योर रेडियो. राइट. अच्छा, बिकॉज आई सॉ अ रील ऑफ योर्स विद सम फ्रेंड जो वो DDLJ का सीन यू वर रिक्रिएटिंग. सिमरन जाज जी ले समथिंग. सो वो तो आई थिंक वी वर प्रमोटिंग अ फेस्टिवल. No. What were you promoting? अरे we were not even promoting वो अपना अहमदाबाद में the final match was going. The cricket match. Yes. So yeah, कि अहमदाबाद जाना तो ये सब जबरदस्ती करवाएगा? करना पड़ता है, इतना करना पड़ता है, मतलब क्योंकि फ्लोर पर people know कि who is the right kind of person to make a reel on Instagram. So yeah, your boss is like who are pushed. Yeah, two people you come here. जो RJ है वो ये भी कर लो. तुम सिमरन, तुम शाहरुख. So yeah, ये सब चीजें होती रहती है. But do you think like I think because it's an audio medium. Yeah. है ना? Yeah. And I think वो voice का tonality
एम्फेसिस बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है ना? Correct. तो डू यू हैव सम काइंड ऑफ वॉइस ट्रेनिंग डन फॉर बिकमिंग एन आरजे? ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप एंड जब व्हेन आई वाज हायर्ड आई हैड दिस थिंग कि यार मुझे बात तो करनी है, बट अ लॉट ऑफ माई बॉसेस यूज्ड टू से कि यार बहुत बच्ची साउंड करती है, बिकॉज आई वाज 19 व्हेन आई जॉइंड, व्हेन आई वाज हायर्ड एज एन इंटर्न. ओके. तो मैं थोड़ी बच्ची तो साउंड करती थी, बट स्लोली वो एक होता है ना कि यार रेडियो पर आना है, मुझे भी बात करना सीखना है. वो धीरे धीरे ट्रेनिंग के थ्रू वो होता गया. आई स्टार्टेड गिविंग वॉइस ओवर्स, बट फिर वो आदत हो गई कि मैं हाई पिच में ही बात कर रही हूँ. हाँ, 982223 व्हाटएवर. सो लाइक गुड मॉर्निंग. एग्जैक्टली. तो वो आदत हो गई. फिर पता चला कि नहीं यार, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉइस ओवर प्रोजेक्ट्स जिसपे तुमको धीरे भी बात करना पड़ता है. लाइक इट शुड साउंड मोर इंटरैक्टिव. लाइक मैं अगर कोई बेटी हूँ जो गुस्सा है अपनी मम्मी से, तो आई नीड टू साउंड लाइक दैट. तो वो सब ट्रेनिंग के बाद धीरे धीरे पता चलता है. तो एक फॉर्मल ट्रेनिंग होता है. हाँ, वो धीरे धीरे आफ्टर लाइक as you keep doing a lot of voiceovers, you get trained in that particular this thing. So yeah. So are you like, because now that I think of it, मैं कुछ ये जो रेडियो शो सुनता था जिसपे the host is calling a person and एक prank call है basically. हाँ. वैसा सब भी होता है. हाँ, होता है ना, अभी भी होता है. Has this ever gone wrong? क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर मुझे किसी होस्ट ने गलत टाइम पे फोन करके कुछ ऐसा बोला था, मैं तो उसको जो माँ बहन की गाली देता. तो ऐसा भी होता है क्या? होता है. हम काट देते हैं उसको. आप सुनते नहीं है वो. So yeah, लोगों को ऐसे लगता है कि everything is happening live. There is nothing is happening live. But it is happening live only when the RJ alone is talking. क्योंकि उसी पर भरोसा किया जा सकता है ना. वो क्या ही बोल, मतलब वो कुछ गलत बोल दिया तो उसके जॉब पे खतरा है. तो लाइक कोई सुन रहा है क्या? हाँ, कोई कंटिन्यूसली सुन रहा है क्या कि सब सही चल रहा है क्या? एयर चेक्स होते हैं, द ऑडिट्स. इट इज लाइक वो अपने एग्जाम्स में कभी कोई बाहर से टीचर चेक करने आ गया, वो वैसा वाला है ना. ऐसा कोई देख नहीं रहा है पर से. हाँ, वो बिल्कुल उसी तरह डराया तो जाता है हमें. पर बहुत सारी गलतियां करके लोग बैठे हैं. बैठे हैं अभी भी बैठे हैं. तो यू फील कि इसमें भी कुछ इनोवेशन नहीं आ रहा है क्या, लाइक फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव भी? या इवन आई थिंक कि यू नो रेडियो में वो इनोवेशन नहीं आ रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है पॉडकास्ट्स हैं एंड एवरीथिंग, बट यू नो आई फील एन आरजे इज ट्रेन्ड टू टॉक फॉर दैट पर्टिकुलर 1 minute 30 seconds ओनली. पॉडकास्ट में कैसे धीरे बात करते हैं, यू आर जस्ट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, तो वो सब मैटर करता है. But sorry, I forgot your question only. What were you saying? No. Our point was around कि you said ना कि बहुत जन गलती करके बैठे हैं. हाँ. So I'm like कि is there not कि new bunch of RJs नहीं आ रहे क्या? Is there a मतलब yes. RJ people don't want to become an RJ? Is it not No, it's not like that. A lot of people come to our radio station saying कि मेरे को RJ बनना है. अरे पर लोगों को ऐसे लगता भी है कि ऑफिस में सिर्फ एक ही इंसान बैठा है, वो अपना फेडर ऊपर कर रहा है, माइक पर बात कर रहा है और बंद कर दे रहा है. बट नो, देयर आर like 40 people working on a floor. There's a sales team, there's programming team, there's IT, HR, admin, सब है. So but yeah, like you said कि काफी सारे वो जो RJs हैं वो अभी भी RJs हैं, वही RJs हैं जो 20 साल पहले हायर हुए थे. तो ये एक चीज़ मुझे लगती है, बिकॉज लाइक फॉर एग्जाम्पल पीपल, इफ़ यू टॉक अबाउट इंस्टाग्राम, यू मोस्टली कंज्यूम कंटेंट जो यूथ आपको दे रहा है, राइट? ओके. बट अपेरेंटली द आरजेज हु आर स्टिल वर्किंग एट रेड एफएम और व्हाटएवर रेडियो स्टेशन यू से, वो अभी भी वही हैं जो पिछले 20 साल पहले हायर हुए थे. लाइक आई स्टिल नो पीपल who launched the radio station in Pune. Foundation का पत्थर उन्होंने ही लगाया था. Still working with radio. But one thing that I really respect about them, those RJs know content. मतलब they know कि एक RJ link कैसे की जाती है. RJ link. So basically we call it a link क्योंकि वो दो elements को जोड़ने वाला एक
jock talk link hai, right? So like for example, if a song is playing, if an ad is playing, in between there comes a link. So that's basically linking RJ the song link. Okay, with okay, the okay. ad. Got it. Yeah. So so the RJs, of course, they know how to do a link, but the problem is कि उन्हें ऑडियो वे में ही पता है कि कैसे वो खेल सकते हैं, उनको विजुअली कंटेंट देना आता नहीं है. Okay. Like for example, if a person who has been hired 20 years back and they are still in radio, उनको पता है कि मुझे कैसे अपनी लिंक स्टार्ट करनी है, बीच में गाना कब टीज करना है, और उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए उसने जो भी बोला है उस पर कम बैक कैसे देना है. बट एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू विजुअल मीडियम, लाइक फॉर एग्जाम्पल एन इंस्टाग्राम रील, you know, there are things like if you want to scroll, first 3 seconds में आपका attention grab होना चाहिए, वो चीज़ RJs को नहीं करने आती है. But there are a lot of people, there are a lot of RJs who have learnt this trick. They know कि अब visually, digitally भी कैसे you know, content provide करना है लोगों तक. Okay. So they have cracked their bit. बट अभी RJing में वीडियो एलिमेंट है, लाइक योर वीडियो फीड कहाँ आता है? इज दिस ऑडियो राइट? YouTube वगैरह पर आता है. बट दैट इज वेरी सिलेक्टिव ना, और दैट इज एवरी डे? No, not every day. Very selective. Like for example, if a celeb is coming to the studio for an interview, तो उसका पूरा जितना भी interview bit है, that will be posted on YouTube. So in terms of celebs, whom have you interviewed? Oh, I've interviewed Kullu, if you know Kullu. Yeah. Aditya Kulshresht. Yeah. Then I have interviewed Neha Dhupia. Okay. Who is she? Yeah, I know. वही. क्या था उसका डायलॉग? I forgot. It's her choice. It's her choice. Dude, she went crazy viral during that time. क्या हुआ था? So नहीं यार, MTV Roadies में. अच्छा. During that or when on your show? हाँ, मतलब उसके बाद ही मैंने इंटरव्यू किया. Okay. So yeah. You got any particular memories कि यार ये ऐसा खतरनाक fuck up हो गया था when I was on air? Not on air, but in front of a celebrity. हाँ, क्या हुआ? Okay, so all right. So I was at a client's place. मैं एक OB के लिए गई थी. So OB is basically outdoor broadcasting. Okay. तो जैसे for example न्यूज़ में होता है ना कि अच्छा ठीक है, तो मेरे साथ है इस वक्त अनुकृति गुप्ता, तो चलिए उनके पास जाते हैं, क्या चल रहा है वहाँ पर. तो दैट इट्स कॉल्ड OB. हाँ, दैट्स कॉल्ड एन OB. तो मैं एक OB के लिए गई हुई थी एंड वहाँ पर एक सेलिब्रिटी आई हुई थी. इट वाज अ क्लाइंट थिंग, ओके, रियल एस्टेट क्लाइंट इट वाज. वहाँ पर एक सेलिब्रिटी आई हुई थी, चक दे इंडिया की कैप्टन. डू यू रिमेंबर हर? Vidya. Yes, with the goalkeeper. Yeah. The goalkeeper? She's the goalkeeper, right? I think so. चक दे इंडिया कैप्टन कौन था? गोलकीपर थी ना? हाँ, गोलकीपर थी वो. हाँ, गोलकीपर थी. ठीक है, तो वो आई हुई थी and I was a 19-year-old kid, dude. I was an intern. तो मैंने डोर खोल करके देखा तो कम से कम 10 लोग बैठे हैं और उनके सामने इंटरव्यू करना है मुझे. फट तो ली थी मेरी. देन आई वेंट और बहुत अच्छे से एक्साइटमेंट के साथ मैंने शुरू किया. whatever, and then और मेरे साथ है इस वक्त विद्या मालवड़े. तो then I realized, oh shit dude, I said something wrong. विद्या मालवड़े नहीं है उसका नाम विद्या मालवदे है. So that I remember. और बेचारी वो, but she was very sweet to me. Because obviously she's heard it so many times. एक 19-year-old टाइप की लड़की खड़ी है जंप सूट में उसके सामने. उसने बोला no, it's not मालवड़े, it's मालवदे, okay, it's मालवदे. मैं क्या shut up, I'm so sorry. So yeah, those kind of fuck-ups keep happening. But on air ऐसा कुछ हुआ है? Like मतलब what I'm asking is all kinds of people listen to radio. Correct. And आपको नहीं पता वो किस मूड में. आपको तो खुश रहना है, but they might not be. Right. And they might even call up. Yeah. Call करके ऐसा कुछ. हाँ dude, मतलब जैसे इंटरव्यूज के टाइम भी किसी का भी अगर हम बाइट ले रहे हैं ना, तो we don't keep that on air button चालू.
We make sure that it's recorded first, we edit it and only then we put it up. But हाँ, RJ से भी fuck ups हुए हैं, ऐसा नहीं है, बहुत बार हुए हैं. Like I know I won't take names, but एक बार ऐसे हुआ था. Take don't. अरे नहीं यार. We'll also edit it. So I was interning and the jock was doing the show. So apparently her show was done, she wanted to leave. तो लिंक किया और मेरा वक्त हो चुका है और मैं मिलूँगी आपसे कल 12 और 3 के बीच. सो येस, स्टे ट्यून्ड टू व्हाटएवर एंड बजाते रहो व्हाटएवर द लिंक इज. ओके. और फिर apparently the mic was not off. Okay. And the PGM button. So PGM is a button जो on air, मतलब वो अगर ऑन है तो सब कुछ ऑनर जा रहा है. अच्छा, okay. जो भी कैप्चर हो रहा है हर फेडर में. एंड देन शी फिनिश्ड हर लिंक एंड देन शी सेइंग कि अरे यार कितने देर से बैठी हुई हूँ मैं यहाँ पर, यार सुसु करने जा रहा है. एंड देन शी जस्ट लाइक लेफ्ट. और 4 मिनट फिर ऑफ एयर हुआ एंड द माइक वॉज ऑन एंड द PGM वॉज ऑल्सो ऑन. अब पता नहीं है किसी को भी फ्लोर पे, ठीक है, 30 लोग बैठे हुए हैं फ्लोर पे, किसी को भी आइडिया भी नहीं है कि ये चीज़ हो चुका है. सो देन सडनली दिस वन फ्रेंड ऑफ हर्स, शी कॉल्ड एंड शी सेड कि ये क्या तो सुसु करने जा रही है और सबको ऑनर बता रही है और कुछ बज भी नहीं रहा है अभी. देन शी गॉट टू नो कुछ बज भी नहीं रहा उसके बाद एटलीस्ट गाना तो लगा दे. जस्ट साइलेंट चल रहा है. So then she got to know कि dude ऐसा कुछ हो चुका है. तो फिर then that मतलब जो भी सिस्टम में से हमने वो निकाला, डिलीट कर दिया कि दिखे ना किसी को, क्योंकि अगर दिखा तो फिर लग गए. 24 आवर्स का एयर चेक कोई नहीं सुनते बैठेगा ना दिन भर का. तो वो डिलीट कर दिया एंड देन nobody knows, only I knew. और मैंने वो आज बता दिया. ये जो डेटा है, that's a little technical question. ये डेटा तुम लोग स्टोर तो नहीं करते होंगे? क्या? एवरीडे का डेटा करते हैं हर एक रेडियो स्टेशन का करते हैं. So you're telling last 20 years के हर दिन का डेटा है? Not last 20 years, 1 year I can say. अच्छा. हाँ, एक साल का डेटा तो एटलीस्ट सेव होता ही है. और क्या क्यों सेव होता है? From what perspective? Do you repurpose it कभी? नहीं, just to monitor stuff. अच्छा. Even I don't know why. Good question. Yeah. Ask your boss today. क्यों है? But हाँ ठीक है, I get कि 6 महीने पहले का जो भी डेटा है वो स्टोर होता है. Like for example, there are a lot of client interviews that keep happening. Okay. There are a lot of celebrity interviews that keep happening. So for example, अगर वो interview delete हो गया या like client is asking कि मेरा 2 महीने पहले वो interview बजा हुआ था तो वो निकाल करके दे दो. तो फिर निकाल करके देना पड़ता है उसमें से. So yeah. That's one of the reasons. बाकी 20 साल का डेटा रखने लायक नहीं है, इतना नहीं कुछ. Interesting यार. So do you like the next bunch of RJs आ रहे हैं क्या? और कहाँ से आ रहे हैं? रेडियो चलने वाला है क्या तब तक? मुझे पता नहीं यार. मतलब honestly you feel that in the next I don't know 5 years? Like you said कि आपके एल्डर्स ही सुनते थे रेडियो, ठीक है, और मेरे समय में भी मैं गाड़ी चला रही होंगी अगर तो मैं इट्स डिफॉल्ट में चल रहा है वो. इट्स नॉट मैं नहीं सुनूंगी रेडियो. लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैं कैब में ही आ रही थी तो माय स्टेशन वाज ऑन, पर मुझे पता है कि उसका इट्स अ प्राइमरी थिंग दैट यू आर जस्ट लिसनिंग टू इट इन द बैकग्राउंड. चल रहा है कुछ पैसिवली बोलते हैं. हाँ, इट्स पैसिव. So you are not really listening कि what is happening. Like for example, I know कि अभी जैसे for example इवनिंग शो शुरू हुआ था तो आई एम द इवनिंग शो प्रोड्यूसर और मुझे पता है कि वो एक लिंक में ना हम कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है. मतलब जैसे ये उर्वशी रौटेला ने ये टेक दिया है सैफ अली खान के अटैक के ऊपर, तो एक काम करेंगे, पहले वो बाइट प्ले करेंगे, फिर उसके बाद उसका टेक होगा और फिर ये गाना बजा देंगे, थोड़ा सा सार्कास्टिक टेक हो जाएगा, ठीक है. तो मतलब दैट वी कीप प्लानिंग. पर फिर जब पता चलता है ना कि यार कैब ड्राइवर भी नहीं सुन रहा है अब ये क्या कहाँ जा रहा है ये कंटेंट, तो बुरा लगता है यार. बट लाइक आई सेड कि अगर तुम्हें पता है ना कि वो कंटेंट दूसरे मीडियम्स पर भी कैसे यूज करना है, देन यू नो. दिस इज एन इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम ना.
आप जो बोल रहे हो, Yeah. बिकॉज एंड हाउ इज दिस, जैसे एक रेडियो एफएम हो गया, रेडियो मिर्ची हो गया, ये फिर रेड एफएम, ये सब अलग अलग है ना? हाँ, अलग These are like different companies which have their own radios. Yes. हाँ. So Red FM belongs to Sun TV network. अच्छा, okay. Fever FM belongs to Hindustan Times. Mirchi belongs to, I think, Times of India, if I'm not wrong. Okay. Radio City belongs to Dainik Bhaskar. Okay. So अलग अलग प्रिंट मीडिया इनकी मदर कंपनी है. ओके, तो जनरली एक मेजर प्रिंट मीडिया आउटलेट ही फिर अपना एक रेडियो वर्टिकल निकालता है. स्टैंड अलोन रेडियो कंपनीज नहीं होते हैं. नहीं. ओके. I think apart from All India Radio, I don't think so. Okay. Nice. So then are you looking for a different job is my question if you're so confident. No, I'm not confident. See, रेडियो चलेगा अभी आराम से. I think 5-10 साल तो चलेगा ही, क्योंकि रेडियो, even the sales people at radio, they have figured out a way. Like for example, सिर्फ ads चला करके हमारा रेवेन्यू नहीं आता है. डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कि मतलब हाँ, ये एक जॉक है, इसके 250 के फॉलोअर्स हैं, ये एक रील डालेगा आपका और साथ ही साथ रेडियो भी करेगा, मतलब एक इंटरव्यू देगा. सो दे नो. सो वी आर ऑल्सो हायरिंग पीपल हु आर well known on Instagram as well. वही वाला फंडा है कि प्रोड्यूसर्स take a lot of influencers as actors surely because एक following है. Correct. तो रेडियो में भी वैसा हो रहा है. Correct. अच्छा, okay. क्योंकि अब जैसे टीवी पे कितने ही लोग देख रहे हैं ना. नहीं, बट आई थिंक एंड मे बी दिस इज अ पॉइंट, मेरी मम्मी आज भी हर दिन टीवी देखती है. हाँ. फ्रॉम 8:30 to 11 there is this 4-5 episode serials. अनुपमा. I think so, could be, I don't know. जमाई नंबर 1 और एक दो है कुछ तो टीवी तो देख रहे लोग प्रीडोमिनेंटली. आई थिंक जो वो 45 से 65 के बीच में का एज ग्रुप है. राइट. डू यू थिंक रेडियोज में भी देयर मस्ट बी लाइक टियर 2 में ज्यादा सुनते होंगे? आई डोंट नो. यू हैव एक्सेस टू दिस डेटा, कौन सुन रहा है और कहाँ से सुन रहा है? बोलते तो हैं कि है. ठीक है, हो गया. द प्रोड्यूसर इज सेइंग क्योंकि ये सवाल मैंने भी किया हुआ है. कुछ तो एक फीडबैक लूप तो आई एम अज्यूमिंग है. लाइक व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस, जैसे टारगेट ऑडियंस क्या है हमारी, दैट people know. Like for example, the radio companies know. At the same time, we even call listeners to our station to understand कि उसको क्या सुनना है या वो कौन से एज रेंज में बिलोंग करता है. Okay. So like हम ऐसे I don't remember the name. Lab we call it Okay. something like lab. Okay. तो वो एक टेस्ट होता है बेसिकली कि which what is our target audience, क्या सुनना है उनको, हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं. जैसे आप एक हैं. फोकस ग्रुप को बुलाते हो और उनका प्रेफरेंस पूछ के वैसा. करेक्ट. अच्छा. तो वो चीज़ें होती हैं. एट द सेम टाइम अ लॉट ऑफ पीपल से कि हमें पता है कि वी आर द नंबर 1 रेडियो स्टेशन. कैसे पता नहीं. ओके. क्लेम करने वाली बात हो गई है यार. बहुत ही मर्की लग रहा है ये सब. I'm assuming tier 2 में या tier 3 में ज्यादा सुनते होंगे. I'm assuming like people like Uber, cab drivers. So basically आपका major audience. हाँ, वही है. वो पेट वाले ही सुन रहे हैं अभी तक रेडियो. वहाँ के लोग पहचान जानते हैं हमें. यहाँ केपी कैंप तक नहीं पहचानते लोग. But हाँ, ये सीन तो है. But apart from this, what like I've seen that you go to a lot of these music festivals. Oh yeah. That's like a pet peeve. छुट्टियों में or in your free time you go to these festivals. I'm very fond of music. You went to Coldplay? No, dude. No? Why? Overrated. हाँ, मेरे को बहुत overrated. You think Coldplay is overrated? मेरे को ऐसे लगा कि ये मतलब it's in my bucket list. I want to go for Coldplay, but not in India, dude. Yeah. I want to go to Germany or somewhere and then attend Coldplay. Okay. Like abhi afternoon mein I got to know that one of my friend has jugaadod this CAS ka concert. So now I want to go there. Okay. Then I attended one music festival in Zero. It's it happens in Arunachal Pradesh. Yeah. Correct. Oh dude, that was a music fest. वहाँ पर कुछ VIP वगैरह सीन नहीं है, कुछ GA सीन नहीं है, बैंड्स हैं वगैरह, बट खुले में आप म्यूजिक एंजॉय कर रहे हो. यू डोंट इवन नो देयर आर सो मेनी आर्टिस्ट्स हु वर
सिंगिंग लाइक बंगाली सॉन्ग, मैं बंगाली पे नाच रही हूँ, गा रही हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है उन चीजों में. सो लाइक इट वाज एन एक्चुअल म्यूजिक फेस्ट, लाइक यू आर एंजॉयिंग अ म्यूजिक फेस्ट. ये भीड़ भड़के में स्टोरी वोरी बनाने के लिए नहीं गई थी मैं वहां पर. ऐसे है ना, so many stories I saw. Yeah, dude, so It is like कि लाइफ में Coldplay कॉन्सर्ट तो करना चाहिए. फोन गिर गया उसका. हाँ. I know, dude. It's way too much. और वो बुक माई शो पे उस टाइम पे तो अलग ही भसड़ चल रही थी. और ये Coldplay जानते नहीं है लोग, और ऐसे ही वो फोमो के चक्कर में निकल के कॉन्सर्ट में घुस रहे हैं. वो मुझे ऐसा लगा. तो यार I want to enjoy a concert with a bunch of people who know that music. Like that is one thing that I'm really passionate about. कि यार vibing with a stranger is my thing. Yeah. यहाँ कोई randomly मिल गया, अरे अहमदाबाद से हो, अच्छा मैं पुणे से हूँ, ये लेकिन vibe हम सेम गाने पे कर रहे हैं. तो वो यहाँ पर पता ही नहीं है Coldplay कौन, क्रिस मार्टिन क्या, कुछ पता ही नहीं है. कूद के जा रहे हैं बस फोमो के चक्कर में. So you're थोड़ा सा more you do listen music. So you know the artists and वगैरह वैसा. Correct. So who are your top even, 3? अच्छा, my top 3 artists like you. Oh my god, so many. Indian or like. यार मेरा मुझे ना डर लगता है, कोई मेरा प्लेलिस्ट देख लेगा ना तो क्या सोचेगा मेरे बारे में. एक तरफ मैं एकदम 90s के टिपिकल कुमार सानू के गाने सुन रही हूँ, और फिर अचानक से पिंक फ्लॉयड सुन रही हूँ बीच में. तो मेरा है वैसा, मतलब मुझे कोई एक पर्टिकुलर जॉनर नहीं पसंद. आई लिसन टू रॉक, आई लिसन टू लेड ज़ेप, आई लिसन टू टिपिकल 90s अरे रे अरे क्या हुआ also. So but I like Led Zepp, I like Pink Floyd, I like CAS, I like Lumineers. Okay. Lumineers, and then many. Oh my god, there's a long list. Wow, it was very interesting कि एक भी इंडिया का नहीं है. एक भी इंडिया का नहीं है. Is it because you hear so many songs? You almost that can be for one a of living. the You're listening to songs and you're like, भाई. यार आजकल गाने नहीं आ रहे अच्छे. आजकल? हाँ नहीं आ रहे अच्छे. टोनी कक्कर, नेहा कक्कर को नहीं सुनना है मुझे. मैं सुन लूंगी कुमार सानू. आई एम हैप्पी विद हिम. अभी इंडिया के टॉप 3 मोस्ट ओवररेटेड आर्टिस्ट कौन है यार? अनूप जैन. अनूप जैन. Okay, why? नहीं गा, मतलब क्या है उसमें बताओ. AR रहमान को मैं समझ सकती हूँ कि यार वो आर्टिस्ट है यार, क्या गुलदस्ता बना करके दे देता है तुमको वो वैरायटी का अपने गानों में. बट अनूप जैन इज अ लिटिल ओवररेटेड. एट द सेम टाइम आई आल्सो फील आवाज कम क्यों हो गया? You know your वो रिकॉर्ड हो रहा है. I've interviewed him. Then even Prateek Kuhad and Jasleen Royal also. Okay. Yeah, I think they're overrated. You're overrated? हाँ. Sure. Coldplay. Did you see that video? Which one? Coldplay के concert में ना Jasleen Royal was playing one of those songs, रणवीर अलाहाबादिया के साथ वाला. वो पीछे ड्रम बजा रहा है और जसलीन रॉयल एकदम धीरे धीरे गा रही है. तो वो ऐसे मिसमैच लग रहा था मुझे थोड़ा सा. But yeah, I think they're overrated. So Sean is a music producer, by the way. Oh. तो ये भी music में पढ़ा. He's drowned in music. अच्छा. Sean, what do you think about what she said? See. Do you agree with me? I agree with Anup Jai. Okay. सिगरोने वाले गाने बना दे. And his songs are one of those that won't let you move on from your past breakups. It's one of those songs. Yeah. But what I've realized is वो तीनों भी soft music बनाते. So do you not like soft music? Do you not like pop? जैसा Obviously she said she would Led Zeppelin सुनती है वो. MC Stan भी नहीं पसंद है मुझे. कौन? Hey, you तो because he doesn't look good ना. No, ऐसा थोड़ी है. But अगर आप ठीक है बोलोगे जसलीन रॉयल नहीं पसंद, टोनी कक्कर इज आल्सो वेरी हेटेड ऑन, ठीक है वो बात अलग है. बट मेरा पॉइंट ऐसा है कि व्हाई डोंट यू अभी, क्योंकि देयर इज लिफाफा. हाँ लिफाफा आई लव. Oh I love लिफाफा. You could have said क्या लिफाफा. हाँ मेरे को याद नहीं आया. येलो डायरी आई लव. हाँ ठीक. फिर वो चाय में टोस्ट हो गया. चाय में टोस्ट. हाँ वो एक ही bunch of 15-16 NH7 में play करता है. Correct. तो also this includes the radio bit in it कि
रेडियो पे लिफाफा इतना पुश क्यों नहीं हो रहा, या फिर रेडियो पे इतना there's, and ऐसा नहीं कि they don't have a base of their own. Correct. They have a very niche crowd. Zero में उस दिन अगर अपने you said that you went to Zero. I think there was Vedang and Shreyas also, right? Right. Performing there. Right. So what I remember is, ठीक है, Vedang, I don't know if you've heard of Rada. Rada, I know. ठीक है. So, Rada Vishai. Yeah, the Pune rapper, of course. Oh. तो ऐसा है कि because they built a niche crowd of their own. Correct. But फिर भी even though उनके गानों में गालियाँ नहीं होंगी, हम लोग I'm Rada's mixing engineer by the way, so I cut his cuss words, वो सब मेरे को याद है. Okay. क्योंकि रेडियो पे supported नहीं है ना. Right. So we even if we prep songs in a way कि they might be played on the radio, उनको वो push नहीं मिल रहा अभी. Why do you feel like वो क्या void है बीच में that could be sort of worked upon? So there are certain shows on radio जहाँ पर independent artists को हम push कर रहे हैं. Like for example, I remember Rada had come to my studio and like for an interview and everything. हाँ. Did he send his song for Red FM Indies? कौन सा ये माउशी? माउशी के हाँ ये माउशी प्रमोट करने के लिए घूम रहा था. अच्छा, अगर उसने Red FM Indies में भेजा है अपना गाना तो I am sure it must have been played. पर हाँ, ये एक सीन होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम लिसनिंग टू एन अनुव जैन ट्रैक 10 times in a day, राडा का गाना मैं 10 बार नहीं सुनूंगी. Like for example, people come to radio to listen to their favorite artists as well. Like जैसे राडा is a great artist I feel, but at the same time हमें ऊपर से भी प्रेशर रहता है कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी के गाने ज़्यादा चलाने हैं. इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए एक शो है, वहाँ पर स्पेस दिया जाता है उन्हें, बट हाँ ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है because of course the policies in pop music. Yeah. But then Anuj Jhan is also independent, right? yeah, but he's famous. So again, it comes down to your followership. Exactly. Or is it like if it is in a Bollywood movie, automatically it's a popular song? Yeah, it has more following. I wouldn't say it's a good song, but because what he's saying is, लिफाफा को मैंने कभी रेडियो पे नहीं सुना है भाई. Like there are so many great artists. Like for example, the radio people think that these artists should approach themselves To the radio? to the radio. Interesting. Like they don't know कि यार ऐसा भी गाना exist कर रहा है. और Do you think, or okay, is there a position within the company where this person is abreast with every kind of music? इंडिपेंडेंट सीन में ना ड्रिल में ना नसीब रियली पंजाब में आ रहा है. अच्छा पूना सीन ना there's this new rapper Rada. So there is somebody like that at the company? so we call them music managers. Okay. So music managers are basically, but अब ऐसा हो गया है ना कि यार सब कुछ इतना मैनुअल हो गया है कि नहीं. So ads are the most, सब एड्स को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है रेडियो पे क्योंकि दैट्स रेवेन्यू. Money, yeah. ठीक है. देन नेक्स्ट कम्स कि कुछ ऐसे गाने भी होते हैं जो बजाने के लिए हमें पैसे दिए गए हुए हैं. By artists? Not by artists, by a certain label. Like T Series has bought इतना space in the radio. Okay. So they want इतना गाना उनका play होना चाहिए. Is this called market share? Sort of, yeah. Oh, interesting. So ये सब चीज़ें हैं. तो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट कहीं ना कहीं उस चीज़ के वजह से पुश नहीं हो पाते. So that's why, like even on my show, which is called Pune Cafe, I used to try and interview a lot of musicians because I was very passionate about music. कि यार ये गाना किस thought में लिखा होगा इसने, कैसे आया होगा ये. तो वो चीज़ I'm very passionate about music. So I used to try and play their music. चल ठीक है 3 मिनट का तेरा 4 मिनट का भी गाना है मैं प्ले करती हूँ. तो बट मेरे लेवल पे मैं उतना ही कर सकती हूँ उस आर्टिस्ट के लिए. The company needs to understand कि you know they need a bigger platform. मतलब जैसे कि उनको और exposure देने की ज़रूरत है रेडियो पे. So for example, if a independent artist is listening to us right now and they want to be discovered or have a better exposure, how should they approach you to a radio company? Make reels, dude. Reels. Okay. रेडियो से क्या होगा मुझे बताओ. और क्यों आना है ब्रो? क्यों आ रहा है तुम्हें रेडियो पे? तुम रील्स बनाओ. तुम मेरे साथ पॉडकास्ट करो, उस पे बात करते तेरा और मेरा कोलैब करके डालेंगे. बट वही सीन है. सिंस वी स्पोक कि उबर कैब ड्राइवर्स ही सुन रहे हैं रेडियो या रिक्शा ड्राइवर्स ही सुन रहे हैं गाने, तो उनको थोड़ी सुनाना है तुम्हें.
No wonder they are just having Jasleen Kaur and other like. Yeah. Hmm. So that. You follow Desi hip hop? क्या चल देसी रहा है? हिप हॉप जैसे I mean, phew, so many. culture. Huh? पूरा culture in general. Those हिप हॉप नॉट सो मच. not so much. Okay. हाँ, हिप हॉप नॉट सो मच. वो रेडियो पे बजता भी नहीं है क्या इतना? क्या? ऐसा देसी हिप हॉप गाने DHS कोई गाना बता तो मुझे समझ. आई थिंक क्या डिवाइन का कोई भी गाना हो अच्छा गया हाँ, डिवाइन या- वगैरह भी प्ले बिकॉज डिवाइन इज But again, Huge, no? Divine is After like Gully huge. Boy. He's huge. He's huge. he's huge. Farhan Khan, but he's too nascent. Dhanji again too nascent. But ठीक है यार है, but I got my answer. नहीं बजाते. पर हाँ हर जैसे फॉर एग्जांपल टेम्पो भी मेंटेन करना पड़ता है रेडियो पर कि लाइक फॉर एग्जांपल बारिश हो रही है वो तो वी चेंज द थीम ऑफ द. According to the weather. हाँ हाँ माहौल के हिसाब से. Oh wow. तो कि वो अभी- सब सीन होता है तो दैट डिपेंड्स ऑन द म्यूजिक मैनेजर हाँ कि गाने काम कर आज थोड़े अरिजीत सिंह के लगा दे. हाँ मतलब सब मानसून चल ब्रेकअप रहा फेज है. में जाने दे अपने लिसनर्स को. लिसनर बारिश हो रही मौसम भी वैसे ही हो रहा है. लिसनर है एक जो बॉम्बे से पूरा ड्राइवर गाड़ी टैक्सी चला के आ रहा है. So हाँ इंटरेस्टिंग. so like according to the शो का जो वाइब रहेगा उसके हिसाब से गाने होते हैं. Like for शो का vibe, so you said like weather plays a part. This I never knew. हाँ तो weather समर plays a में part. हमेशा एक पर्टिकुलर टाइप के गाने, मानसून में थोड़े नहीं ग्लूमी गाने. मॉनसून का ही प्लेलिस्ट मैं डिसाइड कर पाऊंगी समर का कौन सा गाना होगा. हाँ. ठीक है बट लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ शोज. हाँ. Like for example, I produce the evening show. The evening show is called MH935 with RJ Yash. So he is a late millennial Gen Z sort of a person. और वो he's known to be a पुणे का इकलौता serial chiller. Serial chiller. Serial chiller. Okay. तो the kind of songs that youth listens to या He listens. जो हाँ तो वैसे टाइप के गाने फिर are scheduled in the show. Okay, तो ये आरजे के ऊपर भी डिपेंडेंट है. हाँ द फील ऑफ द शो उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है. Okay. और दिस इज अ डेली अफेयर, हर दिन करना पड़ता है कैसा? रोज है. लाइक फॉर एग्जांपल मॉर्निंग शो आरजेस को 7 बजे स्टूडियो में होना होता है. 7 बजे फर्स्ट लिंक जानी है तो जानी है, वो स्किप नहीं होनी चाहिए. वो थोड़े हैं वो. तो दैट वे ये कंपनी तो ऑलमोस्ट 24 आवर्स ही चलता है. लाइक इट्स ओपन, ऑलवेज ओपन. नो द ऑफिस नॉट ऑल Studio. हाँ द स्टूडियो इज the office is not always open. Like for example night shows are recorded. हाँ अच्छा, those are not live. Those are not live. Okay. और 12 से 6 तो it's non-stop music. Okay. बट कोई बजा रहा है क्या वो, या वो ऐसा प्री रिकॉर्डेड है कि अभी 6 घंटे ये गाने बजने वाले? नहीं. So कोई तो होगा वो. so वो पहले से लगे होते हैं. So there's this software called Zeta. Okay. It's by RCS. रेडियो कम्यूटिंग सिस्टम सर्विस पता नहीं. आई फक. तो उसमें क्लॉक्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 24 घंटे हैं एक दिन में, तो 24 घंटे का वो पूरा लॉग स्केड्यूल हो जाता है. तो बेसिकली वो म्यूजिक मैनेजर डिज़ाइन करता है कि 8 बजे जब घंटा शुरू होगा तो फिर सबसे पहले क्या बजेगा, तो स्टेशनैलिटी बजेगी. तो रेड एफएम बजाते रहो, व्हाटएवर द जिंगल इज. अच्छा ओके. दैट विल प्ले विच इज़ अराउंड अ मिनट. देन उसके बाद कौन सा शो चल रहा है, और अगर कोई शो नहीं चल रहा है तो रेड एफएम का स्टेशनैलिटी. एंड देन व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स आर गोइंग टू प्ले. एंड देन उसके बीच में देयर इज ऑलवेज अ सेपरेटर विच वी कॉल अ स्वीपर. तो हर गाने के बीच में आई एम श्योर कि कोई भी गाना उसके बीच में आता है कि यू आर लिसनिंग टू सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजा दे रहो व्हाटएवर. सो वो एक सेपरेटर होता है. एंड देन द जॉक टॉक लिंक. एंड देन देयर इज अ स्पेस फॉर एड्स जो वो कहीं और से इंटीग्रेट होकर के आता है. मतलब उसके लिए एक डिफरेंट ट्रैफिक टीम बैठाई गई है जो स्पॉट्स इंटीग्रेट करता है. तो एवरीथिंग इज डिजाइंड. वो उसके अकॉर्डिंग ही स्केड्यूल होके आता रहता है, बट शफल होके आता रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर 8-10 पे आज ये वाला पर्टिकुलर गाना बजा था तो कल 8-10 पे वही गाना नहीं बजेगा, कोई और गाना बजेगा. तो वो अपने हिसाब से स्केड्यूल करते रहता है. The system only, the software only keeps scheduling it. हाँ, then we make changes
इन द एंटायर लॉग, इन द एंटायर जो भी एलिमेंट्स जनरेट हुए हैं उस 24 घंटे के क्लॉक में, देन वी कीप मेकिंग चेंजेस कि हाँ यार ठीक है, यहाँ पर आरजे लिंक करनी है, यहाँ पर वो आरजे लिंक प्लेस्ड नहीं होगी, वो जॉक आएगा 6 बजे स्टूडियो के अंदर, वो पहला लिंक अपना रिकॉर्ड करेगा। तो ऐसे होता है। काफी कुछ है यार इसमें, बहुत कुछ है। लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 घंटा 60 मिनट का होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हर गाना एक सर्टेन मिनट का ही नहीं होता, कभी 4 मिनट का गाना है, कभी 1.5 मिनट का गाना है, whatever। तो हम लोग रफली 60 मिनट के एलिमेंट्स 1 घंटे में प्लेस करते हैं और फिर वो प्लस माइनस हो जाता है। जैसे 60 मिनट, चल ठीक है 65 मिनट हो गया ये, तो फिर उसके बाद का जो एलिमेंट है वो 65 मिनट बाद बजने लगेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल द TOH, कि इट्स 7 द TOH और द टाइम चेक, लाइक इट्स 7 AM, वो 8 बजे के बाद बज रहा है यार, क्योंकि अगर मैनेज नहीं किया होगा उसे, तो वो सब चीज होती है। तो 1 घंटे में रफली कितने गाने बजा सकते हो एवरेज? 3-5 एड्स के ऊपर डिपेंड करता है वो। अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गणपति का टाइम चल रहा है तो उस समय बहुत ज्यादा एड्स होते हैं, बिकॉज दैट्स द सीजन टाइम। तो तब से 4 गाने 1 घंटे में। ओके, एंड नॉन सीजन टाइम में? नॉन सीजन टाइम में 3, 6, 2, 4, 10-12 गाने। ओके, सो या नाइस, बहुत कुछ है। So where do you see yourself with this now? You see yourself continuing as a producer? In radio? Yeah. No. Then have you thought of something else? Yeah. So like now I know media. Now I know how. मतलब तरीके अलग हो सकते हैं, पर एंटरटेनमेंट वही है। जैसे मेरा तरीका अभी फिलहाल रेडियो के थ्रू है। जैसे रेडियो इज द मीडियम, द वे दैट आई एम ट्राइंग टू एंटरटेन पीपल। वही चीज़ अगर मैं किसी और अपना मीडियम चेंज करूँ तो शायद उसमें भी मैं अच्छी हो सकती हूँ। तो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल लाइक फॉर एग्जांपल फ्रॉम रेडियो हु हैव गॉन इनटू नेटफ्लिक्स, फ्रॉम रेडियो हु हैव गॉन इनटू स्कूप वूप, फ्रॉम रेडियो हु हैव गॉन इनटू फिल्टर कॉपी और बियर बाइसेप्स और व्हाटएवर। सो मीडिया। You like Allahabadiya, Ranveer Allahabadiya? You like him? अप्लाई किया हुआ है मैंने यार, मत बोल। फिर ठीक है, yes she likes I like रणवीर अलाहाबादी is the best। चोमो है, क्या बात कर रहे हैं? थोड़ा सा थोड़ा धीरे से बात किया तो भी माइक है वो अनुकृति और आरजे। नहीं ठीक है, मत डालना यार। नहीं पर what do you think of these influencers? Before I used to think that dude he's killing it with his content. Okay. Like the kind of वो अपने जो जनरल इंसान, एक कॉमन इंसान के दिमाग में जो क्वेश्चन आएगा वो पूछ रहा है उससे। बट फिर उसके बाद वो थोड़ा तांत्रिक वांत्रिक में चला गया तो मेरे को थोड़ा सा ये लगा क्या चल रहा है यार। नागा बाबा का सच और हाँ, तो ये नहीं प्रोड्यूस करना। ठीक है। Okay. Interesting. But as a producer, there is a lot of job apart from radio, in content more particularly. So, a lot of people who are in radio, they find a different source of income. Like for example, if I'm a voiceover artist, बहुत सारी चीजें हैं यार दुनिया में, मुझे भी नहीं पता था। तो धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हुए मुझे पता चला। Like there are a lot of people who are consuming audio books. जैसे अगर आपकी मम्मी कोई सीरियल देख रही है 2 घंटे 3 घंटे, वहाँ देश के किसी कोने में कोई बंदा ऑडियो बुक सुन रहा है 2 घंटा कॉन्स्टेंटली। सो देन आई गॉट टू नो कि दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट अ पर्सन कैन डू, दैट अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैन डू। तो फिर मैं भी उठाने लगी थोड़ी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स। एट द सेम टाइम देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर लुकिंग फॉर होस्ट्स, MCs, सो अ लॉट ऑफ RJs आर इनटू होस्टिंग एंड into hosting events, corporate events. So ऐसा अच्छा है। तो वो सब चीजें हैं। Nice. Sean, any particular music related question that you had for us? I mean, already asked, I guess. But मुझे एक चीज जो रेडियो में अभी फिलहाल कम लगती है ना, is that a lot of people who are young, पुणे में यूथ ज़्यादा है। मुझे मतलब
हर इंसान पुणे में यंग ही है. सारे कॉलेज का क्राउड सब यहीं आ रहे हैं. They listen to a lot of international music. Okay. And that is one thing that is not being played on radio. Like before, I remember when I was an intern, no? So at that time, I was working in a radio station that they used to play international music after 10 p.m. Yes, in the yes, night. yes. So वो शो मैं लगाती थी. मेरे को बड़ी खुशी है उस बात की. So like Bryan Adams, jazz music, ये सब. Yeah. I remember. Yeah, but now it stopped again. अच्छा. तो ये एक चीज है that इधर भी नेशनलिज्म नहीं, वो कंपनी के पॉलिसीज कुछ चेंज हो गए थे कि उनको मुंबई में ही रखना था. मुंबई में स्टिल दे प्ले इंटरनेशनल म्यूजिक, दैट वन पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन डज. बट आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू नो रेडियो कंपनी शुड नो कि इस शहर में यार इंटरनेशनल गाने बहुत सुनते हैं लोग. मुंबई में सुनते हैं, पुणे में बहुत सुनते हैं. सो दैट इज समथिंग दैट आई थिंक दैट इज, वो एक कमी है कि यार इंटरनेशनल म्यूजिक प्रमोट नहीं हो रहा है यहाँ पर, या लोगों को पसंद है वो, पर वो प्ले नहीं हो रहा रेडियो पर. What about more like doing audio podcasts, just audio podcasts? होता है वो? हाँ. Regularly, like. मतलब just podcasts instead of like if I know that every evening 5 p.m. Anukriti is going to come with podcast of the day and it could be a music podcast or on something. the radio. On the radio. मतलब मैं लाइव सुन सकता हूँ. पर रेडियो ज्यादातर लोग जो ट्यून इन करते हैं ना, उनको गाने सुनने होते हैं. Okay, they do it for the music. Yeah. So रेडियो की जान ही वही है कि गाने, तुम गाने प्ले नहीं करते. मैं हर जगह जहाँ पर भी किसी इवेंट में जा रही हूँ, सब वही चिल्ला रहे हैं हाँ करके, यार एड्स बहुत बजते हैं. मैं क्या करूँ यार, कंपनी ने बोला है मैं डिलीट कर दूंगी, मेरी जॉब जाएगी. Okay. तो ये सीन है. Cool. Nice यार. कंपनी की वजह से करना पड़ता है. But हाँ, at the same time, even radio companies are, you know, trying to get more youth into their. How? Through us. आ जाओ please. But radio. लेकिन हम लोग मतलब रेडियो का अगर फ्यूचर ही नहीं है, that's what you're trying to say, right? It might die in the to create digital content, so that they are active here and So, on digital at the same time. No. So my follow-up question is, if content creators come to you, Sorry. if content creators come to you with a concept that, hey, this is my idea to promote myself and the company, so you guys are open for something like that? Yeah. Yeah. Okay, no, that is interesting. Now that, because we create a lot of content. So now I'm thinking, okay, is there a possible collaboration here? Sean produces a lot of music, so I'm thinking, okay, is there any Correct. arrangement where you know it's a win-win for everyone? Yes. पर हाँ, वो सीन बहुत है कि बहुत सारे लोगों से अप्रूवल लेना पड़ता है, ये वो वगैरह, उनको समझाना पड़ता है, मीटिंग्स एंड एवरीथिंग. बट हाँ, दे आर ओपन फॉर इट. दे विल एक्सेप्ट योर. शॉन गाना भेज. स्पॉटिफाई लिंक ही मांग रही हूँ मैं. इमेजिन रेडियो पे स्पॉटिफाई लिंक मिलती है. very informative last 40 minutes. या बहुत ज्यादा यार. कि यार ऐसा, like all the reasons why radio is not working अभी मुझे पता है. But यार, even there are still people like you who are doing it. There are people like you, like, when I say people like you, you're like young people who also listen to international music. पता है कि बाहर क्या चल रहा है. You're in the ecosystem. Yeah. So I think the right kind of positioning, the right pitch, and obviously the trust from your management people, you can actually turn around radio. Radio can become a hip thing. We can. Yeah. So like for example, radio has started doing events now. Yeah. जैसे Red FM does this Red Live, like concerts. Red Live. Red Live. Sorry, मेरे को Red Light. क्या? What are they doing? Red Live. Okay. तो वो दगड़ू सेठ के पीछे एरिया है, उधर है क्या? रेड लाइव. तो वो 3 दिन का जैसे अपना NH7 होता है वगैरह, दैट काइंड ऑफ कॉन्सर्ट्स दे आर ट्राइंग टू कम अप विद, जहाँ पर. But who are these musicians? Local musicians?
जो इवेंट में आते हैं, नो गुड म्यूजिशियंस लाइक well-known परंपरा, अग्नि द बैंड, एंड स्टैंड अप कॉमेडियंस, गौरव गुप्ता, ये सब, दे यूजुअली कम. सो लाइक, सो नाउ रेडियो, मतलब हर एक कंपनी का अपना अलग है. कोई एक इवेंट के पीछे भाग रहा है कि अब हमें इवेंट्स पर फोकस करना है, डिजिटल कंटेंट पर फोकस करना है. At the same time, there are radio companies that are focusing on, you know, creating IPs. Like for example, Red FM has come up with this IP called Marathi Film Festival. Okay. So जैसे PIF होता है, there are different kinds of film festival that keep happening, Yeah. especially in Pune because FTI आया है इधर. तो Marathi Film Festival is an IP that they have come up with, जहाँ पर मराठी फिल्म्स स्क्रीन होते हैं वन बाय वन, एंड उसके बाद जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उस पर्टिकुलर मूवी में वो आकर के दे डू अ पैनल डिस्कशन सॉर्ट ऑफ थिंग. देन देयर इज साउथ साइड स्टोरी. मुझे भी नहीं पता था ये, बट साउथ इंडियन म्यूजिशियंस किल कर रहे हैं यार. आपको नहीं पता था? मुझे पता नहीं था. But later I got to know about Pal Dabba and Young Raja. So Hanuman Kind is the biggest one. Hanuman Kind is the biggest. So a certain event was created कि यहाँ पर ऐसे musicians आएंगे और फिर सद्या वद्या होगा. So like it's a whole boutique experience that you have. Okay. Nice, interesting. वो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, definitely कर रहे हैं. I think a better PR work would do. More better content creators, like more varied content creators. Correct. The thing is, no, I have found out कि मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि यार किसी कंटेंट क्रिएटर को अगर रेडियो पर बुलाया ना तो शायद, मतलब डूड सच अ बिग कंटेंट क्रिएटर, 200K और 300K फॉलोअर्स हैं इसके. यार पता है वो इंस्टाग्राम रील तो अच्छा बना लेते हैं, वो नहीं बोल पाते माइक के सामने. ये दिस थिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड कि वो दैट्स अ स्किल सेट यार. दैट्स अ स्किल सेट. सो लाइक फॉर एग्जांपल, I feel that a radio jockey can come on digital. They can learn how to create content on Instagram. But a content creator cannot go to radio. They don't know how to engage a listener into their conversation. RJ Link क्या है? RJ Link Jock Talk, जो गानों के बीच में बात होती है. फिर से informative हो गया क्या? नहीं. I've learned a lot of things actually, and I'm now honestly thinking, as a content creator, what can I do? Like, what is a pitch which might be interesting for a dying entity as radio? तुम्हें क्या लगता है हमने पिच नहीं किया है चीजें? नहीं. I'm just thinking नया क्या कर सकता है. AI के साथ तो इतने सारी चीजें हो रही, music is changing so badly, rapidly. Sorry. True. नहीं, पर बहुत लोगों को ये डर है कि you never know when the radio, when they decide to shut down, कि यार अब नहीं करना. क्या मतलब बीच में हुआ भी था काफी कॉस्ट कटिंग के वजह से. a lot of people were like literally asked to like कल से माथा. जैसे हर एक शो का एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर होता है. जैसे रेड एफएम में ही है प्रोड्यूसर्स, बाकी सारे रेडियो स्टेशन में इट्स जस्ट द जॉक हुज आइडिएटिंग. वो खुद ही आइडिएट कर रहा है, खुद ही बात कर रहा है. तो ये सब चीजें हैं. डिपेंड्स ऑन द कंपनी. So you're in a good company. Yeah. Better company. Lucky me. Okay. Anukriti, I'm at the end of my questions here. I think कुछ और बात करते हैं, मजा आ रहा है. अच्छा चलो ठीक है, कुछ और बात करते हैं. क्या इंटरेस्ट है आपके वैसे? What do you do? Movies देखते हो? हाँ. What kind of movies? What was the last movie you saw? Last movie, I've not watched any movie recently. I'm watching BoJack Horseman. BoJack Horseman. Yeah. Okay. Yeah. So and now I'm addicted to it, dude. क्या उसका intro क्या है, dude? I love it. What is your favorite BoJack scene? I think the last part of every season. Oh, dude, it's so, मतलब थोड़ा सा है सेंटी है, पर it's very sweet. For people who don't know about BoJack, how would you describe this and this IP? So it's a world, if I'm sure. So it's a world where animals are also living like humans. And BoJack Horseman, he's a celebrity जिसने 90s में एक शो किया हुआ था which is called Horsing Around. और वो अभी भी
उसी दुनिया में है। मतलब इट्स 2014 आई थिंक, 2014 to 2015, बट वो भी ही इज ऑब्सेस्ड विद द हॉर्सिंग अराउंड वाला बोजैक। एंड एट द सेम टाइम उसकी लाइफ के बारे में आई लव हाउ द कैरेक्टर्स इवॉल्व्ड इन दैट पर्टिकुलर सीरीज। लाइक आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, प्रिंसेस कैरोलाइन, मिस्टर पीनट बटर, डायन। तो उसकी फैमिलीज से इंटरेक्ट होता है, मतलब बताया जाता है ना कि उसकी फैमिलीज में क्या हुआ है। तो बोजैक हैज़ अ वेरी हॉरिबल चाइल्डहुड, और फिर उसके बाद वो अचानक से फेमस हो जाता है, और you know, it's just about his life. He's just trying, he's a horse who's trying to be happy. Though he's very famous, though he has all the wealth, he's just trying to be happy. So yeah, अभी 2 सीजन ही देखे हैं मैंने। तो you should also watch South Park. South Park, yeah. Oh, I haven't watched it. These are all basically cartoons, but very mature storylines. Yeah. Talks about society, life. Correct. A lot of that. Correct. मैंने कभी नहीं देखा है कभी कोई कार्टून ऐसे जो बचपन में भी नहीं मतलब अडल्ट वाले ये ऐसे बोजैक टाइप्स, बट नाउ आई एम लाइकिंग इट। आई थिंक the next series that I'm going to watch is Family Guy. अच्छा, okay. वो मैंने नहीं देखा है, मैं बहुत सुना है उसके बारे में, but I've never watched it. Then you like Even Simpsons. Simpsons, Family Guy. Yeah. और कौन सा है? You definitely watch South Park. South Park. It's on Netflix. It might be. South Park का खुद का वेबसाइट है. Oh. It's huge. It's running from 15-16 seasons. Oh, okay. And they've covered everything. Nice. They have predicted a lot of that. Simpsons जैसा है काफी. हाँ क्या? बहुत कोरोना आने वाला है। It's very sarcastic. They talk about इतने मतलब ऐसा क्रूड ह्यूमर है फुल। बहुत क्रूड ह्यूमर है। They talk about इतने ऐसे gun violence, जेंडर चेंज, ऐसे चीज, और वो है ना लेने के लिए बैठे, वो पूरा कार्टून बस लेने के लिए बैठे। समझ गया मुझे। तो वो I love these kind of डैंक ह्यूमर है वो तो। Correct. I love dank humor. There are Instagram pages, dude. Oh, dude. Do you know about this emo boys of India? I love that page. Sorry, too dark, but my There's nothing dark. वो Reptiles of Kurla जैसा। Reptiles of Kurla जैसे, पर emo boys of India थोड़ा बहुत dark है। वो पता है क्या करता है? So जैसे when मनमोहन सिंह passed away, so उसने उसका फोटो ना डाल करके जितने भी लोग पगड़ी में है ना उनका ब्लैक एंड वाइट फोटो डाल करके वो दिल टूटा वाला इमोजी डाल दिया है नीचे। अभी जैसे सैफ अली खान के साथ ये अटैक हुआ, तो सैफ अली खान लव आजकल वाला जिसमें पगड़ी पहना है उसने वो ब्लैक एंड वाइट फोटो डाल करके ब्रोकन हार्ट वाले इमोजीज डाल। इट्स हिलेरियस, लाइक इट्स डायरेक्ट नरक में जाओगे तुम वो रील्स देखने के बाद, वो पोस्ट देखने के बाद, बट हिलेरियस। टिकटॉक क्रिंज ऑल्सो है ना, टिकटॉक क्रिंज नाम का एक इंस्टाग्राम पेज है। डू यू थिंक पीपल नाउडेज बहुत ज्यादा डैंक कंटेंट ही चल रहा है आफ्टर समय है ना? यस ऑफ कोर्स। या यू लाइक समय राना? You think you really think he's funny? Do you think he's funny? See, बहुत बड़ा ये डिबेट हो सकता है, बट आई डोंट लाइक समय रैना दैट मच। मुझे ऐसे लगता है लाइक इवन इंडियाज गॉट लेटेंट में ना, मुझे ऐसे लगता है दे आर फोर्सिंग देमसेल्व्स कि लेंगे इसकी, तो लेने ही बैठ। मैं फनी दिखने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पर, इसकी लेने के लिए बैठा हूँ। तो मुझे वो ऐसे लगता है कि यार India's Got Latent is not something that I. The initial episodes were good. Like, I liked the first bit, like couple of them. उसके बाद then it's a felt forced. Yeah. मैं नहीं देख पाऊँगी कि जैसे वो दीपक कलाल, राखी साहब, मैं नहीं इतना देख पाऊँगी यार। ये डार्क ह्यूमर चलेगा। सैफ अली खान पगड़ी पहन के, love it. But यार, you're very dank that way, huh? I thought, वो अरे यार, you know what? मुन्ना भाई में who was that RJ? मुन्ना भाई 2 में मैं गुड मैन, उसी को देख करके मैं रेडियो में आई हूँ। अच्छा, I think that is everybody's image कि this do you is. know I'm an interior designer. Oh, by academics, by पढ़ाई से। हाँ। फिर इतना क्या गलत हो गया? तुरंत ऐसे यू टर्न मारा है मैंने वहाँ से। So
आई कंप्लीटेड, मतलब मेरा 10th तक जितना भी पढ़ाई है दैट हैपेंड इन लोनावला. देन आई मूव टू पुणे क्योंकि मतलब घर वर था यहाँ पर एंड प्लानिंग था कि पुणे एक दिन शिफ्ट होना है. Okay. फिर नवरोजी वाड़िया कॉलेज में एडमिशन हो गया. फिर वहाँ पता चला अरे ये तो कॉलेज ही नहीं है, ये तो अलग गुलचर्रे उड़ रहे हैं यहाँ पे. Okay. Then 11th 12th and then later on I had decided that I want to become an architect. अच्छा. 12th में मार्क्स ही नहीं आए अच्छे, हाँ. तो हुआ ही नहीं, एडमिशन ही नहीं हुआ, अच्छा. एलिजिबिलिटी में ही नहीं थी मैं. Okay. एलिजिबल ही नहीं थी मैं. तो देन लेटर ऑन नहीं होगा ये That is how somebody becomes an architect. उसके बाद आई बिकेम एन इंटीरियर डिजाइनर एंड देन लेटर ऑन फिर 2-3 जगह मैंने इंटर्नशिप की, तो फिर पता चला कि ये भी चीज़ नहीं हो रही है यार अपने से, ये क्लाइंट वाइंट के झिक नहीं झेलने यार मुझे. तो फिर दिस वन डे रैंडमली संडे को ब्रश करते हुए मम्मी वो लगे रहो मुन्ना भाई देख रही थी. सो मैं भी देखने लगी, तो मैं बोला यार ये भी सही चीज़ है यार. सो आई सेंट माई रेज्यूमे टू ऑल द रेडियो स्टेशन, जितने भी रेडियो स्टेशन है पुणे में. I got a call from Fever FM. So Okay. then I worked there. Thank God she didn't get inspired by Munna Bhai or something. Body चाहिए. Nice origin story. Yeah. So like that. Nice. Anugri, loved having you. Yeah. Loved being on the show. Oh my God, this is not something I've done before. Okay. मतलब मैंने इंटरव्यू तो बहुत लोगों को किया है, किसी ने मुझे नहीं किया. हाँ.